Hello friends, myself Dr. Kirti Kulkarni and I am from Gokhale Education Society's Arts, Commerce and Science College, Jawar. So friends, I welcome you all for the SY Basic Chemistry Paper 3 and now we are in semester 4. So in our last lecture we have discussed about our syllabus, whatever is there. You have to learn 3 units and then we have started with the first unit, that is method of separation. So friends, here we have also discussed about what is the need of separation in chemical analysis. So we all know that whenever there is mixture of components, it is very difficult to separate them from each other and their analysis is also difficult. So therefore, to make it easy, first we have to separate it into its component, that is called as analytical separation. Okay, and the process in which the mixture is separated in its individual component is called as methods of separations. So friends, when we do not want to separate the component in actual manner, means sometimes it is difficult for us that to separate each and every component in its particular constituent, then what we have to do, we have to use certain techniques like controlling pH, use of masking agents, kinetic masking or chromatography. So these are the techniques where you don't have to carry out actual separation. Okay, so without affecting the separation, using this technique you can separate your mixture and then you can carry out your analysis. So this was about not separation, but when you carry out the separation actually, then what you have to do, that we will see in today's lecture. Okay, so see here, very important, that what is the characteristic of separation method. Okay, separation method जो है उनके characteristic क्या है ना. So सबसे पहले हम लोग देखेंगे what is the definition of separation, right. So separation can be defined as the process by which the mixture is resolved in its component. It is very important that whenever you carry out separation, आप सबसे पहले क्या कर रहे हो, जो भी मिक्सचर आपको दिया है, जो भी सैम्पल आपको दिया है, उसके सारे कंपोनेंट्स या सारे कॉन्स्टिट्यूएंट आप अलग अलग सेपरेट करते हो, रिजॉल्व करते हो. ओके, सो व्हेन यू सेपरेट देम फ्रॉम ईच अदर, देन इट इज़ वेरी ईजी फॉर यू टू कैरी आउट योर फर्दर केमिकल एनालिसिस. तो केमिकल एनालिसिस स्टार्ट करने से पहले हम लोगों को देखना है कि कौन से कॉन्स्टिट्यूएंट का हमें एनालिसिस करना है और उस हिसाब से हम लोगों को सेपरेशन मेथड अप्लाई करना पड़ता है ना. जैसे मैंने लास्ट टाइम भी एग्जांपल दिया था कि व्हेन यू वांट टू हैव टी, तो टी के लिए हम लोग क्या करते हैं, वी यूज़ द फिल्ट्रेशन मेथड, राइट. और जो ऊपर रहता है हमारे छलनी के या सीव के ऊपर जो रहता है चाय पत्ती, उसे हम डिस्कार्ड कर देते हैं और जो नीचे हमारा फिल्ट्रेट आता है इन अ सिंपल लैंग्वेज, जो हमारा चाय है उसे हम लोग पीते हैं, है ना. सो हमारी प्रायोरिटी होनी चाहिए कि which component you want and according to that component you have to apply the separation technique. ऐसी सेपरेशन टेक्निक यूज़ करनी है जिससे डिज़ायर कंपोनेंट अच्छे क्वांटिटी में और अच्छी क्वालिटी में मिले, उसके अंदर कोई इम्प्यूरिटीज़ ना हो, है ना. अगर चाय छलते वक्त हम लोग चाय पत्ती की तरफ ज़्यादा ध्यान देंगे तो क्या होगा, चाय अच्छे से नहीं मिलेगी. सो हियर आवर फोकस इज़ ऑन टी and not on the powder, right. So same way, whatever separation method is applied, the importance is given to the constituent which you want to actually analyze. Okay, so this type of separation methods can be simple or complex. ये जो method हम लोग apply करते हैं, they can be sometime very simple or they can be complex also. So it depends upon the constituent and the sample which you have taken, right. जैसे कि इन सिंपल प्रोसेस यू हैव टू कैरी आउट सिंपल मैकेनिज़्म और सिंपल मैकेनिकल टेक्निक. ओके, जैसे कि सेपरेटिंग फनेल, हम लोग फनेल यूज़ कर सकते हैं और वी कैन यूज़ पिपेट टू सेपरेट टू इमिसिबल लिक्विड्स लाइक वाटर एंड ईथर या वाटर एंड ऑयल. वाटर के ऊपर ऑयल रहेगा, उसका हम लोग ईजीली सेपरेट कर सकते हैं, है ना. सो दिस वे sometimes these techniques are simple but sometimes they are complex also, because suppose some constituents are
मिसिबल विथ ईच अदर, अगर दो लिक्विड एक दूसरे के साथ मिक्स हो चुके हैं तो उनको सेपरेट करना थोड़ा मुश्किल हो सकता है. सो दैट डिपेंड्स अपॉन द सैम्पल एंड इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट. सो इट कैन बी सेपरेशन ऑफ मिसिबल और इमिसिबल लिक्विड. तो किस किस चीज़ों का हम लोग सेपरेशन कर सकते हैं. सो इट कैन बी टू लिक्विड्स ऑल्सो, टू एंड मोर लिक्विड्स. जो मिसिबल है, मिसिबल मतलब एक दूसरे के साथ मिक्स हो चुके हैं, या फिर इमिसिबल एक दूसरे से थोड़े अलग अलग है, या फिर टू और मोर सॉलिड्स, है ना. सॉलिड कंपोनेंट्स भी एक साथ हो सकते हैं. और इट इज़ सेपरेशन ऑफ गैस फ्रॉम सॉलिड और लिक्विड. गैस और सॉलिड के साथ मिक्सचर हो सकता है, लिक्विड और गैस का भी मिक्सचर हो सकता है. सो दैट you have to separate it from each other. So this way, depending upon the importance of your component, you have to apply a particular separation technique, है ना. फिर लास्ट हम लोग क्या देखेंगे कि सेपरेशन टेक्निक किसके ऊपर डिपेंड करती है, किस चीज़ से हम लोग सेपरेशन करते हैं, है ना. सो द सेपरेशन टेक्निक डिपेंड्स अपॉन नंबर ऑफ फैक्टर्स. बहुत सारे फैक्टर होते हैं, लाइक कंपोनेंट्स और कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ द मिक्सचर एंड द एक्यूरेसी रिक्वायर्ड. दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. जैसे कि मान लो आपके पास बहुत सारा मिक्सचर है, आपके पास बहुत सारा सैम्पल है, देन यू डोंट हैव टू वरी टू मच, क्योंकि सपोज़ थोड़ा सा वेस्ट हो गया या फिर सेपरेशन के टाइम थोड़ा मिक्सचर में ही रह गया तो आपको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा. ओके, बट सपोज योर मिक्सचर इज़ वेरी वेरी costly or it is in very small amount, then you have to take a lot of care and according to that you have to apply the separation technique. जैसे कि हम लोग देखते हैं कि आपके पास फिर से एग्जाम्पल है चाय. तो चाय बहुत सारी क्वांटिटी में होती है, इट इज़ ऑल्सो नॉट वेरी कॉस्टली. सो उसको हम लोग इजीली सीव कर लेते और चाय पत्ती फेंक देते और चाय पी लेते. लेकिन मान लो आपके पास कोई छोटा सा सैंपल है ना, जैसे कि क्लोरोफिल, ज़ांथोफिल, किसी फूल से कुछ आपने एक्सट्रैक्ट किया है, देन योर सैंपल इज़ इन वेरी स्मॉल अमाउंट एंड ऑल्सो इट इज़ वेरी डेलिकेट. तो आप उसको हीट करोगे, है ना, तो क्या हो जाएगा, उसके कंपोनेंट डिस्ट्रॉय हो जाएंगे. देन यू हैव टू यूज़ टेक्निक लाइक क्रोमेटोग्राफी, जहाँ पे आपका सैंपल बहुत छोटी क्वांटिटी में होता है एंड इट इज़ ऑल्सो वेरी डेलिकेट, बट you don't have to heat it or don't have to destroy your costly sample. उसको खाली आपको क्या करना है, एक पर्टिकुलर सॉल्वेंट में डिज़ोल्व करना है और क्रोमेटोग्राफिक प्लेट पे रख देना है ना. सो स्लोली इट विल गेट रिजॉल्व इन इट्स कंपोनेंट. सो दिस वे इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट सेपरेशन टेक्निक शुड बी सिलेक्टेड डिपेंडिंग अपॉन वेरियस फैक्टर. तो आपका कंपोनेंट कितना महंगा है, कितनी क्वांटिटी में है, इसके ऊपर डिपेंड करता है. और सबसे ज़्यादा हाउ मच एक्यूरेसी यू वांट, है ना. अगर आपको क्वांटिटेटिव एनालिसिस करना है कि भाई इस अमाउंट ऑफ वाटर में कितना पोल्यूशन है, कितना पोल्यूटेड कंपोनेंट है, तो वो आपको पूरा का पूरा सेपरेट करना चाहिए, है ना. देन ओनली यू विल गेट एग्जैक्ट रिजल्ट. तो उस वे से क्वांटिटी और क्वालिटी भी डिपेंड करती है, एक्यूरेसी डिपेंड करती है कि आप कौन सा सेपरेशन टेक्निक यूज़ करने वाले हो. So this way the separation techniques depend upon various factors like components of the mixture, accuracy as well as quantity of the mixture, है ना. So these are the characteristic of separation method. तो हम लोगों ने अभी सारा इंट्रोडक्शन ले लिया, what is separation techniques, how they are applied and what is their significance. Now we will discuss what are the actual separation techniques. तो ये जो सेपरेशन मेथड्स है या सेपरेशन टेक्निक्स है, दे डिपेंड अपॉन पर्टिकुलर प्रॉपर्टी ऑफ द सब्सटेंस. ये बात आप ध्यान से सुनो कि सेपरेशन मेथड आपके जो कंपोनेंट्स है, सॉलिड, लिक्विड और गैस, उसके पर्टिकुलर प्रॉपर्टी पे डिपेंड करते हैं. सो डिपेंडिंग अपॉन दैट पर्टिकुलर प्रॉपर्टी डिफरेंट टेक्निक्स आर अप्लाइड. ओके, सो नाउ वी विल सी व्हाट आर द टाइप्स ऑफ सेपरेशन मेथड बेस्ड ऑन वेरियस प्रॉपर्टीज़, है ना. कौन कौन से प्रॉपर्टी होते हैं, तो हम लोग सबसे पहले प्रॉपर्टी देखेंगे, दैट इज सेपरेशन मेथड्स बेस्ड अपॉन सॉल्युबिलिटी, है ना. तो सबसे पहले हम लोग कौन सी प्रॉपर्टी देखने वाले, सॉल्युबिलिटी. सॉल्युबिलिटी ये सब्सटेंस की प्रॉपर्टी है, और इस प्रॉपर्टी के ऊपर
तीन सेपरेशन मेथड्स डिपेंड करते कौन कौन से, प्रेसिपिटेशन, फिल्ट्रेशन एंड क्रिस्टलाइजेशन। ठीक है, प्रॉपर्टी कौन सी है, सॉल्युबिलिटी। ऑब्वियसली सॉल्युबिलिटी कहाँ पे डिपेंड करेगी, सॉल्युबिलिटी और सॉल्युबल ना होना, इनसॉल्युबल होना, ये किन चीज़ों के लिए अप्लाई होता है, देयर इज सम लिक्विड और वी कैन से सॉल्यूशन, और उसके अंदर क्या होगा, सॉल्यूट, और वी कैन से सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। तो अगर उस पर्टिकुलर सॉल्वेंट में आपका जो सॉलिड मटेरियल है, सॉल्यूट है, वो डिज़ोल्व हो रहा है या नहीं हो रहा है, इसे हम कहते हैं सॉल्युबिलिटी। तो ये जो प्रॉपर्टी है सब्सटेंस की, सॉल्युबिलिटी, इसके ऊपर तीन टेक्निक है। कौन कौन सी सेपरेशन टेक्निक है, प्रेसिपिटेशन, फिल्ट्रेशन एंड क्रिस्टलाइजेशन। तो डिपेंडिंग अपॉन सॉल्युबिलिटी, नाउ वी विल डिस्कस द फर्स्ट separation technique, that is precipitation. So what is precipitation? It is formation of solid from its solution. ये बहुत सिंपल डेफिनेशन है, आप सब लोगों को प्रेसिपिटेशन क्या होता है पता है। प्रेसिपिटेशन क्या होता है, देखो, द सेपरेशन बाय प्रेसिपिटेशन रिक्वायर्स लार्ज सोल्युबिलिटी डिफरेंस बिटवीन एनालाइट एंड पोटेंशियल इंटरफेरेंसेस। मतलब क्या है कि आपका जो सॉल्यूट आप लोगों को चाहिए, अभी सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं कि प्रेसिपिटेशन कैसे होता है। सो यू आर गिवन अ पर्टिकुलर सॉल्यूशन। अब सॉल्यूशन किसे कहते हैं, जिस सॉल्वेंट में आपका सॉल्यूट पूरी तरह से डिज़ोल्व हो चुका है उसे हम कहते हैं सॉल्यूशन, है ना। तो सॉल्यूशन कैसे बनता है, व्हेन सॉल्यूट इज डिज़ोल्व्ड इन सॉल्वेंट, है। तो ऐसा सिचुएशन में आपको जो दिया है उसे हम कहते हैं सॉल्यूशन। सो द प्रेसिपिटेशन टेक प्लेस फ्रॉम द सॉल्यूशन। तो क्या होगा, यू हैव टू ऐड सर्टन एजेंट्स और केमिकल्स इन योर सॉल्यूशन, और ये सॉल्यूशन के अंदर जो हम लोग केमिकल डालेंगे उसके वजह से क्या होगा, दे विल एक्ट एज प्रेसिपिटेटिंग एजेंट, और उस सॉल्यूशन के अंदर का जो सॉल्यूट है उसको वो सेपरेट करेगा, एंड देन यू विल गेट द प्रेसिपिटेट। प्रेसिपिटेट ऐसे ही नहीं मिलता, यू हैव टू ऐड सर्टन प्रेसिपिटेटिंग एजेंट, जो कोई केमिकल होते हैं, when you add them in the solution then only you will get precipitation. Okay, so precipitation is formation of solid from a solution. The formation of a precipitate indicate the occurrence of chemical reaction. मतलब क्या होगा कि जो सॉल्यूशन था, सॉल्यूशन कैसे बनता है मैंने अभी बताया, एक प्लेन सॉल्वेंट है, उसके अंदर कोई तो सॉल्यूट डिज़ोल्व है कम्प्लीटली, तो उसे हम कहेंगे सॉल्यूशन। उस सॉल्यूशन के अंदर जब आप कोई केमिकल एजेंट डालते हो, प्रेसिपिटेटिंग एजेंट, तो उन दोनों की केमिकल रिएक्शन होती है, एंड व्हेन दिस केमिकल रिएक्शन टेक प्लेस इन योर सॉल्यूशन, आयन कंबाइन टू फॉर्म अ स्पेरिंगली सोल्यूबल सॉल्ट। मतलब स्पेरिंगली सोल्यूबल सॉल्ट मतलब क्या, जिसकी सॉल्युबिलिटी उस सॉल्वेंट में कम है। तो जैसे जैसे उसकी सॉल्युबिलिटी कम होगी वैसे वैसे वो प्रेसिपिटेट बन के सेपरेट होने लगेगा, है ना। जैसे कि NaCl, NaCl क्या है, डिज़ोल्व हो जाता है वाटर में। तो जब आप पानी में NaCl डालोगे तो क्या होगा, इट विल गेट डिज़ोल्व कम्प्लीटली। बट सपोज यू ऐड सर्टन केमिकल एजेंट्स, प्रेसिपिटेटिंग एजेंट, अगर आपका सोडियम किसी भी एजेंट के साथ सेपरेट हो रहा है, प्रेसिपिटेट बन रहा है, देन इट इज़ कॉल्ड एज प्रेसिपिटेशन. So the precipitate free liquid remaining above the solid is called as supernatant solution. मतलब क्या है कि when you add that particular agent, chemical agent, क्या होगा, उस जो solution के अंदर का solute है वो separate होगा और नीचे सिर्फ liquid रहेगा, अभी उसके अंदर solute नहीं है, then that liquid is called as supernatant liquid. एंड द सब्सटेंस टू बी सेपरेटेड, मतलब जो अभी ऊपर रह जाएगा, दैट इज़ कॉल्ड एज प्रेसिपिटेट. तो हम लोग उसका डायग्राम देखते हैं यहाँ पे. हियर यू कैन सी द मेथड ऑफ प्रेसिपिटेशन. देखो सबसे पहले क्या है, देयर इज़ अ टेस्ट ट्यूब कंटेनिंग सोल्यूशन, है ना. उस टेस्ट ट्यूब के अंदर क्या है, सोल्यूशन. अभी सोल्यूशन के अंदर आपको पार्टिकल दिख रहे हैं क्या, नहीं, बिकॉज दैट सॉल्यूट इज़ कम्प्लीटली डिज़ोल्व इन योर सॉल्वेंट. तो जैसे पानी में अगर आप सॉल्ट डालते हो NaCl,
तो वो जैसे कम्प्लीटली डिज़ोल्व हो जाएगा वैसे है। ओके, सो सपोज यू कैन कंसिडर एग्जाम्पल ऑफ फेरिक आयन। फेरिक आयन सोल्यूशन व्हेन इट इज़ देयर, पहले तो वो ग्रीन कलर के दिखेंगे जैसे इस पिक्चर में दिख रहा है ना। तो क्या होगा, सिमिलरली देयर विल बी नो पार्टिकल सीन, बट व्हेन यू ऐड अ पर्टिकुलर प्रेसिपिटेटिंग एजेंट, ओके, लाइक अमोनिया, अगर आपने उसी टेस्ट ट्यूब में डाला तो दैट विल बी सीन लाइक सेकंड टेस्ट ट्यूब। अभी क्या होगा, वो जो आपका सॉल्यूशन है उसके अंदर जो फेरिक आयन है वो धीरे धीरे प्रेसिपिटेट में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा। व्हेन यू ऐड अमोनिया इन दैट, व्हाट विल हैपन, स्लोली पार्टिकल विल फॉर्म। अभी देखो आप सॉल्यूशन का कलर भी चेंज होते देख रहे हो, पहले ग्रीन कलर था वो अभी थोड़ा येलोइश हो गया, क्योंकि उसके अंदर का जो फेरिक आयन है वो सेपरेट हो रहे हैं। एंड व्हेन यू ऐड सर्टन अमाउंट ऑफ प्रेसिपिटेटिंग एजेंट लाइक अमोनिया, यू कैन सी द थर्ड टेस्ट ट्यूब कि अभी आपका जो सॉल्वेंट था, जो सुपरनेट था, वो पूरा सेपरेट हो गया और आपके जो सारे फेरिक आयन थे वो सारे फेरिक आयन फेरिक हाइड्रोक्साइड बन गए, है ना। और क्या हो गया, देयर इज प्रेसिपिटेट ऑफ पर्टिकुलर वी कैन से फेरिक हाइड्रोक्साइड, तो वो नीचे एज अ प्रेसिपिटेट सेपरेट हो जाएंगे। सो फेरिक आयन इन सोल्यूशन इज कन्वर्टेड इनटू अ प्रेसिपिटेट ऑफ फेरिक हाइड्रोक्साइड बाय एडिंग अमोनिया सोल्यूशन, है ना। तो इस तरह से आप देख सकते हो कि पहले जो था प्रेसिपिटेट कोई दिख नहीं रहा है, व्हेन यू ऐड केमिकल एजेंट इन दैट यू कैन सी सम पार्टिकल फॉर्मिंग ऑफ प्रेसिपिटेट। और थर्ड टेस्ट ट्यूब में आप लोग देख सकते हो कि पूरा प्रेसिपिटेट जो है फेरिक हाइड्रोक्साइड का वो फॉर्म हो चुका है, और ऊपर जो वी कैन से लाइट कलर या कलरलेस सब्सटेंस रहता है उसे हम कहते हैं सुपरनेट। तो अभी ये जो सुपरनेट है उसमें कोई आयन नहीं है, सारा जो आयन था फेरिक आयंस वो सारे प्रेसिपिटेट बन के नीचे बैठ गए। सो दिस वे वी कैन से दैट दिस टाइप ऑफ टेक्निक इज अप्लाइड इन प्रेसिपिटेशन। ओके, सो दिस टोटली डिपेंड्स अपॉन द सॉल्युबिलिटी ऑफ द सब्सटेंस, है ना। पहले सॉल्युबल था तो सॉल्यूशन था, और फिर जब सॉल्युबल नहीं रहे, इनसॉल्युबल हो गए, तो स्लोली दे बिकम प्रेसिपिटेट, बट फॉर दैट you have to add precipitating agents. Okay, now again we will see the second method. पहली मेथड हो गई सेपरेशन टेक्निक, दैट इज प्रेसिपिटेशन। सेकंड टेक्निक इज वेरी सिंपल, दैट इज कॉल्ड एज फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन तो हम लोग बचपन से देखते आ रहे है ना, हमें इजीली करना भी आता है। सो फिल्ट्रेशन इज द प्रोसेस इन विच separation of a solid is carried out from contact solution, that is mother liquor, है ना। तो फिल्ट्रेशन में क्या होता है, वो जो आपका सॉल्यूट है वो उसके अंदर डिज़ोल्व नहीं होता। सी वेरी इंपॉर्टेंट, प्रेसिपिटेशन के टाइम में क्या होता है, आपका जो सॉल्यूट था वो सॉल्वेंट में डिज़ोल्व हो चुका है, इसीलिए उसके अंदर कुछ केमिकल एजेंट डालने पड़ते हैं फॉर द सेपरेशन। बट इन केस ऑफ फिल्ट्रेशन यू डोंट हैव टू डू एनीथिंग, क्योंकि वो जो सॉलिड है उसके अंदर का वो उस लिक्विड में डिज़ोल्व नहीं है। सो यू हैव टू सिंपली कैरी आउट फिजिकल मेथड फॉर द सेपरेशन। सो फिल्ट्रेशन प्रोसेस में क्या करना है, उसके अंदर का जो सॉलिड फेज है इट इज़ इन कॉन्टैक्ट विथ द लिक्विड फेज, है ना, उसे हम लोग मदर लिकर भी कहते हैं। वो आपको सिंपल फिजिकल मैनर में सेपरेट करना है यूजिंग अ फिल्टर और फिल्टरिंग मीडियम, है ना। यू कैन यूज़ सम सीव जैसे छलनी होता है, और यू कैन यूज़ फिल्टर पेपर, है ना। अगर आपका सॉलिड बहुत स्मॉल साइज में है तो आपको फिल्टर पेपर यूज़ करना होगा। सो दिस वे यू हैव टू सेपरेट द लिक्विड फ्रॉम द सॉलिड। सो जो लिक्विड सेपरेट होता है उसे हम क्या कहते हैं, फिल्ट्रेट, है ना। तो द मोस्ट कॉमन टेक्निक इज़ टू कलेक्ट द सॉलिड ऑन अ फिल्टर पेपर। सबसे इजी और सबसे वी कैन से मोस्ट यूज मेथड क्या है, फिल्ट्रेशन के लिए हम फिल्टर पेपर यूज़ करते हैं। द सॉलिड फेज में ऑल्सो बी कलेक्टेड ऑन ग्लास प्लेट्स। अगर आपके पास पोरस ग्लास प्लेट्स है तो उसके अंदर से भी आप लोग फिल्ट्रेशन कर सकते हो। सो व्हाट कैन बी द डायग्राम फॉर दैट, सी हियर, दिस इज़ द मेथड ऑफ फिल्ट्रेशन। जो आपका ऊपर बीकर है उस बीकर में पहले क्या था, देयर इज मिक्सचर ऑफ लिक्विड एंड
इनसॉल्यूबल सॉलिड, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आपका जो सॉलिड है वो कैसा है, इनसॉल्यूबल है ना। फिर आपको क्या करना है, आपको एक कोनिकल फ्लास्क लेना है और उसके ऊपर आप लोग फिल्टर पेपर लगा रहे हो। पहले आपको फनेल रखना है ना। फनेल क्यों रखना है, फिल्टर पेपर रखने के लिए। तो फनेल के अंदर हम लोगों ने क्या रखा हुआ है, फिल्टर पेपर। यू कैन सी देयर, सबसे ऊपर स्टैंड लगा हुआ है, स्टैंड के सामने है एक छोटा बीकर है जिसके अंदर येलो कलर का सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन में लिक्विड और इनसॉल्यूबल सॉलिड है। फिर नीचे है फनेल, फनेल के अंदर क्या रखा हुआ है, फिल्टर पेपर वाइट कलर का, यू कैन सी दैट। एंड व्हेन यू पोर योर मिक्सचर, व्हाट विल हैपन, सारा जो सॉलिड है वो फिल्टर पेपर के ऊपर आ जाएगा और जो सारा लिक्विड है जिसे हम लोग क्या कहते हैं, फिल्ट्रेट, है ना, वो कहाँ पे जा रहा है, अंदर आपके कोनिकल फ्लास्क में जा रहा है ना। सो फिल्टर पेपर विल रिजॉल्व योर सॉलिड, दैट इज़ कॉल्ड एज रेसिड्यू। ये फिल्टर पेपर के अंदर जो आपका सॉलिड रहने वाला है उसे हम क्या कहते हैं, रेसिड्यू। और जो नीचे सारा लिक्विड जाने वाला है दैट इज़ कॉल्ड एज फिल्ट्रेट। ओके, सो फिल्टर पेपर यहाँ सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये फिल्टर पेपर क्या करते हैं, they are made up of different type of quality and the best filter papers are Whatman filter paper, जो हम most of the time lab में use करते हैं। So a paper is chosen according to the size of particle to be filtered। तो जो आपको पार्टिकल, सॉलिड पार्टिकल फिल्टर करने हैं उसके साइज़ के और उसकी क्वालिटी के हिसाब से हम लोग वॉटमन फिल्टर पेपर भी चूज़ कर सकते हैं। सो देयर आर 3 टाइप ऑफ we can say Whatman filter papers are used. They are qualitative, semi-qualitative and quantitative. So depending upon the type of solid you have to filter. So this way you can filter the solid using filter paper and you can carry out the filtration. Okay. So यहाँ पे हम लोगों ने 2 मेथड देखी, precipitation and filtration depending upon solubility. Okay. So the third method, that is crystallization, that we will see in tomorrow's lecture. Till that you take care and stay safe. Thank you.